Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. Friends, we have started with the TYBSc Inorganic Chemistry Semester 5, Unit 3, that is Chemistry of Inner Transition Elements. Okay, so friends, so far now we have discussed about what are the inner transition elements, that is lanthanide and actinide series, its position in periodic table, their electronic configuration, then what are their different oxidation states, then very important part, what is lanthanide contraction and what are their consequences, and now we are discussing about their spectral and magnetic properties. Okay, so in that we have seen already about the color of lanthanide complexes. Okay, so we have discussed about their color, that they show very prominent color and that color has no effect of the outer ligands or complexing agent. So they show very prominent color, and we have also seen that we all know now that the 4f orbital get filled as the incoming electron comes. As the atomic number increases of lanthanide or lanthanons, the incoming electron enters in 4f orbital, and we have seen that this 4f orbital is very well shielded by outermost electrons. Okay, this is the key of all the lanthanide series or all lanthanide properties. जो भी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट लैंथेनाइड्स, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो लैंथेनाइड है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते अदर दैन द ट्रांजिशन मेटल्स और अदर metal because of these 4f electrons. And what is the reason? That these 4f electrons are very well shielded because of the outer electrons, that is 5s and 5p orbital electrons, and therefore they don't show any effect of outermost environment. So we can say the ligand effect is not seen because these electrons are very well shielded. So among these we have seen that the color of these complexes becomes dark as the 4f orbital fills from 0 to 3 electron. Okay, पहले उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0 इलेक्ट्रॉन होते, and as the atomic number increases we all know that incoming electron enters in 4f orbital. Okay, और जैसे जैसे ये ऑर्बिटल भरती जाती है फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3, द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स बिकम डार्क, कलर डार्क होता जाता है, and again as it increases from 4 to 7, again the color becomes light. Okay, so this is the property of lanthanides. Then we have discussed about their magnetic properties. Okay, magnetic property is also very important. So in that we have discussed that in case of transition elements मतलब transition metals जो है उनके केस में क्या होता है, only spin orbital is considered, only spin momentum is considered for magnetic properties. Okay, तो आप अगर भूल गए तो I will just revise that things, that magnetic property means the behavior of any substance when it is kept in magnetic field. और ये मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइप के हो सकते हैं और प्रॉपर्टी 2 टाइप की हो सकती है, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. So in case of transition elements it is only because of spin only. Okay, and that's why it is different from lanthanide. But in case of lanthanide it is the combination of spin orbital and your orbital angular momentum. In case of lanthanide, as the 4f electrons are again well shielded because of outer electron, there is no effect of outermost ligands. outermost ligands क्या होते हैं आपको पता है, whenever metal ion forms any compound, any complex, तो अंदर क्या होता है, देर इज मेटल आयन और उसके सराउंडिंग देर आर लिगेंड्स, दे कैन बी 4 और दे कैन बी 6. ओके, सो ये लिगेंड्स मतलब जो आयन्स उसके साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स और लिगेंड्स. तो ये लिगेंड का इफेक्ट जो है वो लैंथेनाइड आयन पे नहीं दिखता बिकॉज उनके जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है वो वेल शिल्डेड है, एंड देयरफॉर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ लिगैंड इलेक्ट्रिक फील्ड. लिगैंड जब आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, एंड इन केस ऑफ लैंथेनाइड देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द
electric field of ligands. So in this case the magnetic moment is because of orbital momentum as well as spin momentum. Orbital momentum is L and spin momentum is S. So in case of lanthanide, the overall momentum, magnetic momentum is because of angular orbital momentum as well as spin momentum. तो ये दोनों का combine effect हम लोगों को दिखता है and it is very high. That's why we can say that the magnetic moment values are high in case of lanthanides. Okay, so now we have discussed about color and the magnetic moment. Now we will discuss about the absorption spectra of the lanthanides. Okay, so absorption spectra of lanthanide. Now first you will ask me the question that what is absorption spectra. Okay, so whenever you give light on a particular substance, there is formation of spectra. तो कुछ लाइट ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ लाइट इमिट कर देते हैं. ओके, सो वेन एवर लाइट इज एब्जॉर्ब देर इज फॉर्मेशन ऑफ शार्प लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा मतलब क्या आप लोगों ने देखा होगा. सो इफ़ यू स्टडी दैट स्पेक्ट्रा it will show sharp lines because of absorption of light. So in case of emission spectra the light is emitted out. Okay, so this is a property of particular substance. कोई भी substance की absorption and emission spectra एक characteristic property होती है. Okay, so now we will discuss about the lanthanide. Okay, so it's very simple. When you pass these substance from particular light you can see और electromagnetic effect के वजह से हम लोग क्या देख सकते हैं, absorption spectra. So see here the absorption spectra is the characteristic property of all substance. Okay, क्योंकि जैसे हमारे fingerprints होते हैं they are different from each other, right? Similarly the absorption or emission spectra are also fingerprints of particular substance. किसी भी दो चीज़ का स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सेम नहीं होता. ओके, जो लाइंस वो लोग दिखाते हैं, लाइंस क्यों दिखती है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब लाइट ऑन अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी. तो कोई भी दो चीज़ सेम फ्रिक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, राइट? जैसे हमारा फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, उसी तरह कोई भी दो चीज़ें सेम फ्रिक्वेंसी और सेम वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. इसीलिए दे आर कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट और a particular characteristic of a substance. So absorption spectra is the characteristic property of all substances. Now most of the tripositive lanthanide ions show well defined sharp and line like absorption spectra. So in case of our lanthanides they show very characteristic well defined शार्प एंड लाइन लाइक, मतलब शार्प लाइन की तरह हम लोगों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखता है. ओके, सो दीज शार्प स्पेक्ट्रा रिजेंबल्स द लाइन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा मोर क्लोजली दैन द ब्रॉड डिफ्यूज स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल. मतलब ट्रांजिशन मेटल में या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ले लो या फिर इमिशन स्पेक्ट्रा ले लो, दे आर ब्रॉड. उनके जो पिक्स आते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं. बट इन केस ऑफ लैंथेनाइड दे आर वेरी शार्प, इतने शार्प के जैसे एक लाइन हो. ओके, इतना शार्प स्पेक्ट्रा हमें मिलता है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दीज शार्प लाइन्स आर मोर एंड मोर शार्प फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड दैन द सोल्यूशन. ये जो स्पेक्ट्रा है वो सोल्यूशन के जगह अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हो तो और भी ज़्यादा शार्प मिलता है. ओके, सो इफ़ यू टेक सोल्यूशन यू विल गेट लिटिल बिट ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बट इफ़ यू गेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, तो आपका जो स्पेक्ट्रा होगा दैट विल बी मोर एंड मोर शार्प. ओके, सो व्हाट हैपन्स नाउ, these bands can be made more sharp by just lowering the temperature. अगर आप सराउंडिंग टेम्परेचर और भी लोअर करते हो, इफ़ यू प्रोवाइड cooler temperature or cold temperature, then you will get more and more sharp spectra. Okay, then sometime what happens, जो हम लोग बात करते हैं उसके लिए कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं. सो जस्ट नाउ आई डिस्कस दैट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड्स आर वेरी शार्प, इतने शार्प के जैसे लाइन हो, स्ट्रेट लाइन. लेकिन देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस
like it band of the absorption spectra become little bit broad for सीरियम एंड एटर्बियम. ओके, सो सीरियम और एटर्बियम के जो आयन्स है वो कभी कभार ब्रॉड स्पेक्ट्रा भी दिखाते हैं. ओके, सो ऑल द थिंग्स और ऑल द रूल्स हैव ऑलवेज सम एक्सेप्शंस. सो सिमिलरली हियर the spectras are sharp, but in case of cerium and ytterbium the spectra sometimes become broad. Okay, so now we will see how these spectra are. Okay, so see here you will get the idea about this, that these are the absorption spectra of PrCl3 and NdCl3. Okay, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो they are the peaks of absorption spectra. Okay, so now we will just see the characteristic of them. The absorption spectra indicate the changes involved during transition of electron from one energy level to other. So very important that why we see the absorption spectra. Okay, तो ये simple thing है, आप try to understand. किसी भी चीज़ पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होगा, देयर विल बी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पहले नॉर्मल स्टेट पे है. ओके, तो उनके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ता है क्या होगा, दे गेट एनर्जी एंड सडनली देयर इज़ अ ट्रांजिशन इन देम. ट्रांजिशन मतलब उनके अंदर एनर्जी के वजह से कुछ अलग टाइप के ट्रांजिशन जनरेट होते हैं एंड दे गो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. उनकी एनर्जी बढ़ जाती है. ओके, वी नो दैट light is just bundle of energy, bundle of photons. Okay, तो ये क्या है, it is one kind of energy. So when electron get this light energy वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते. ओके, और ये जो हायर स्टेट में चले जाते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब सम एनर्जी फ्रॉम लाइट. ओके, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. और वो ज़्यादा देर तक वहाँ ट्रांजिशन स्टेट में नहीं रहते. ओके, दे विल अगेन कम डाउन. So when they come down they emit some light or emit some energy, that is called as emission spectra. तो पहले हम लोग जस्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे. जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस. ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस. तो लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ता है व्हाट विल हैपन, दे विल गो टू द ट्रांजिशन स्टेट. ग्राउंड स्टेट से वो हायर लेवल पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सम एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम लाइट, जो लाइट आप उस पर डाल रहे हो. ओके, सो इट इज़ जस्ट द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर. नाउ इन केस ऑफ लैंथेनाइड ये एनर्जी किनको मिल रही है, 4f इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, वैसे तो एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन को मिलती है लेकिन दे आर फिक्स्ड विथ सम कॉम्प्लेक्सेस, वो बाउंड है और उनकी ऑर्बिटल क्या हो रही है, फील्ड है. लेकिन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से कम ऐसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल. ओके, तो जो भी चीज़ होगी, जो भी ट्रांजिशन होगा दैट इज़ ओनली विथ रिस्पेक्ट टू 4f ऑर्बिटल. ओके, अदरवाइज यू विल आस्क मी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द एटम. सो यहीं पे क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज़ फ्री टू शो सम रिएक्शन. सो इन केस ऑफ लैंथेनाइड ये जो एनर्जी है किसको मिल रही है, 4f इलेक्ट्रॉन्स को भी मिल रही है, बट दिस 4f इलेक्ट्रॉन्स आर वेल शील्डेड बाय सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, हम लोगों ने ये पहले से ही डिस्कस करके रखा है कि ये जो हमारे 4f ऑर्बिटल है वो आउटर ऑर्बिटल से क्या है, वेल शील्डेड. शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड. तो ये जो 4f ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिखाएंगे वो बाहर के ऑर्बिटल से क्या है, प्रोटेक्टेड है. ओके, therefore the absorption spectra arise from the transition of electron within the same 4f level. ये जो ब्लू लाइन में लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है लेकिन वो बाहर जा सकेंगे क्या, विल दे गो आउट, नो, बिकॉज दिस ऑर्बिटल 4f ऑर्बिटल इज़ वेल शील्डेड. तो उन्हें जो भी करना है, हायर लेवल में जाना है, हायर लेवल से फिर वापस आना है, ये सब कुछ कहाँ पे होगा, ओनली इन 4f ऑर्बिटल. ओके, सो द ट्रांजिशन टेक प्लेस ओनली इन केस ऑफ 4f लेवल. सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, ये जो ट्रांजिशन है वो कहाँ पे हो रहा है, ओनली इन 4f ऑर्बिटल बिकॉज this is well shielded, it is well protected from outermost electron. So in case of lanthanide
ये जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वो कहाँ पे हो रहा है, 4f ऑर्बिटल में हो रहा है। एंड सी द रेड लाइन, पिंक लाइन, such a transition is called as FF transition. Okay, because in case of lanthanide outer electrons are not taking part in the reaction, only 4f electrons are taking in action and ये well shielded है, therefore this type of transition मतलब हायर लेवल के एनर्जी में जाना किनका, इलेक्ट्रॉन का, इट इज़ कॉल्ड एज FF ट्रांजिशन। ओके, सो ये जो FF ट्रांजिशन है it take place only in case of lanthanide. In most of cases this take place only in case of lanthanide and it gives sharp absorption spectra. तो जैसे ही ये FF ट्रांजिशन होता है आपको जो स्पेक्ट्रा मिलने वाला है वो कैसा होगा, वेरी शार्प। स्पेक्ट्रा मतलब क्या, अभी हम लोगों ने देखा था जो लाइन मिलती है, ये लाइन क्यों मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट दे गो टू हायर एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे वो एनर्जी लेके शार्प लाइन हम लोगों को दिखाते हैं इन स्पेक्ट्रा। सो दिस स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो नोन एज FF ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा। ओके, मतलब क्या है, in case of lanthanide the transition of electron take place only in case of 4f orbital। ये 4f orbital क्या है, well shielded है, इसीलिए it take place only within that 4f orbital। इस तरीके के ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, FF ट्रांजिशन। और जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है द लास्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज FF ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा। ओके, सो यू जस्ट सी दिस डायग्राम दैट दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ PrCl3 प्रासियोडाइनियम ट्राइक्लोराइड एंड नियोडाइनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, सो इनके ये स्पेक्ट्रा है, आप लोग देख सकते हो, इट इज़ वेरी शार्प स्पेक्ट्रा, PrCl3 एंड NdCl3। ओके, सो प्रासियोडाइनियम क्लोराइड और नियोडाइनियम क्लोराइड के केस में आपको ऐसा शार्प स्पेक्ट्रा मिलेगा। ओके, सो यू कैन सी दैट इट इज़ लाइक अ ग्राफ। ओके, ट्रांजिशन फ्रॉम ground state to higher state. So at the x axis you can see the wavelength, particular wavelength पे ही आपको क्या मिलेगा, sharp spectra मिलेगा। and at y axis you can see the absorption coefficient। absorption coefficient मतलब जहाँ पे आपको लाइन मिलेगी, spectral line मिलेगी। okay, so you can see that in first case you get sharp spectra at about some 430 to 440 nanometer। okay, that is the wavelength, and in case of the second spectra you can see that at 580 you can get the sharp peak। okay, so this is the absorption spectra of PrCl3 and NdCl3। okay, so now we can see that it is observed that the absorption spectra of lanthanides are not affected by the complexing ligand। जो भी कॉम्प्लेक्सिंग लिगैंड है बाहर, ओके, वो लैंथेनाइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखाते, दे आर जस्ट देयर। अभी ये बार बार वही रीज़न है उसका, दिस इज़ बिकॉज द 4f इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन आर वेल शील्डेड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो लिगैंड्स है, बाहर के लिगैंड्स, उनका इफेक्ट कब दिखेगा, अगर आपके पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, ओके, तो ही उनका इफेक्ट दिखेगा, है ना। जैसे मान लो कि कोई भी आउटर मोस्ट सर्कल है, वहाँ पे आप खड़े हो तो बाहर से जो भी आएगा उसका इफेक्ट आपके ऊपर पहले दिखेगा। जैसे अगर आप डोर के पास बैठे हो इन क्लासरूम, तो बाहर से जो भी एयर आ रही है या फिर बारिश आ गई तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर सबसे ज़्यादा दिखेगा, और जो अंदर बैठा हुआ है स्टूडेंट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा जल्दी। सो सिमिलरली हियर इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स ऑल एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पार्ट ले रहे हैं वो कहाँ पे है, in 4f electron orbital, so it is well shielded and therefore it will not show any effect of surrounding complexing agent. Hence the outer factors like complexation does not affect the absorption spectra of lanthanide and it remains sharp। अगर बाहर के जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो इफ़ेक्ट करते तो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिलता, ब्रॉड लाइन मिलती, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है दे आर इनसाइड, दे आर वेल प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर दे विल नॉट शो एनी इफेक्ट एंड देयरफॉर ये जो ट्रांजिशन है वो एक ही लेवल पे हो रही है, FF जो F ऑर्बिटल है वही के वही वो ट्रांजिशन हो रहा है
और इसी वजह से यू गेट अ शार्प लाइन. ओके, so these sharp spectra are useful for qualitative detection of lanthanons and their quantitative estimation. ये जो आपको शार्प लाइन मिल रहा है ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. मतलब क्या है कि कौन सा लैंथेनाइड प्रेजेंट है, कौन सा लैंथेनॉन प्रेजेंट है, दैट यू कैन फाइंड आउट. एंड ऑल्सो देयर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. मतलब क्या, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. एज आई हैव डिस्कस दैट दे आर द फिंगरप्रिंट्स. कौन से इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, दैट इज़ द फिंगरप्रिंट ऑफ लैंथेनाइड्स. सो इन केस ऑफ लैंथेनाइड ये जो शार्प स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन. तो इस वजह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मानो इस वेवलेंथ पे हम लोगों को पिक मिल रहा है ना. यू कैन सी हियर. सो दिस पीक कैन बी ऑब्टेन ओनली एट पर्टिकुलर वेवलेंथ. तो हम लोगों को पहले से ही पता रहेगा कि इस वेवलेंथ पे कौन स्पेक्ट्रा दिखाता है. मान लो प्रेसियोडाइनियम, तो यहाँ पे हम लोगों को पिक मिला, दैट मीन्स प्रेसियोडाइनियम इज प्रेजेंट. देन 580 पे पिक मिल रहा है, मतलब नियोडाइनियम इज प्रेजेंट. सो दिस वे दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्या प्रेजेंट है, कौन सा लैंथेनॉन प्रेजेंट है. सो वी कैन फाइंड आउट एट व्हाट पिक इट इज़ प्रेजेंट, मीन्स कौन सा है, दैट इज़ क्वालिटेटिव. एंड ये जो पिक है उसकी जो इंटेंसिटी है उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज़ इट्स क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ओके, सो these spectras are unaffected because of outermost complexes and therefore they are very sharp, unaffected by outermost environment, and therefore they can be useful for qualitative as well as quantitative estimation of lanthanides. So in the diagram we can see a part of absorption spectra of PrCl3 and NdCl3. So because of the sharp peak you can find out at particular wavelength it is there, means only this लैंथेनॉन इज़ प्रेजेंट. अलग अलग लैंथेनॉन के लिए अलग अलग वेवलेंथ रहेगी. तो अलग अलग वेवलेंथ मतलब यू कैन फाइंड आउट विच लैंथेनॉन इज़ प्रेजेंट. और ये जो शार्प पिक है, ये पिक की जो इंटेंसिटी है, ओके, द एरिया अंडर द पिक, द एरिया अंडर द पिक यू कैन फाइंड आउट देयर. ये जो एरिया है, ये एरिया के अंडर जितना भी आपका है उससे आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, देयर क्वांटिटी also. Okay, so what is the next property of lanthanide contraction, that we will see in our next lecture. Till that, take care. Thank you.